Let's do next question. Question is, let me read the question. So question is, a man wants to reach point B on the opposite bank of a river flowing at a speed as shown in the figure. What minimum speed related to the water should the man have so that he can reach directly to the point B? In which direction should he swim? Okay. So what we need to find out, if a person wants to swim directly from A to B, मतलब पर्सन चाहता है कि उसकी जो जर्नी है वो डायरेक्ट A to B जाए, ओके तो उसे कितनी वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो करना है और कौन सी एंगल पे फ्लो करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें पता करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सम विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम। सो नाउ क्लास रिमेंबर वन थिंग, दिस क्वेश्चन कम्स इन स्विमिंग इन अ डायरेक्टेड डायरेक्शन। ये टॉपिक हमने किया है, इसकी थियोरी हमने की है, ओके। तो स्विमिंग इन अ डायरेक्टेड डायरेक्शन के लिए आपको पता होगा कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसको लेते हैं, जो डायरेक्शन में उसको फ्लो करना है, जैसे कि ए से बी तक, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस वन विल बी माई वाई एक्सिस, लाइक दिस वन, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, नाउ सी हियर, river is flowing in this direction with a velocity of u. I will say that let's suppose that person is moving in this direction with a velocity v. The person is moving in this direction with a velocity v, making an angle theta with the vertical line. Correct? Okay, तो ये वाली एंगल हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा प्लस 45. Clear? So now what we will do, we will resolve v into two components, one along x-axis and another along y-axis. X-axis AB वाली लाइन है और y-axis the line which is perpendicular to the AB, मैं यहाँ पर डॉट करके बना देता हूँ, that this line is my y-axis in this case. AB x-axis and this one is y-axis. यहाँ पर भी हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं, this is x-axis and this is y-axis. तो v को we will resolve into two component, one along x-axis and another along y-axis. तो x एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है v का, वो क्या हो गया, v cos थीटा प्लस 45, एज v इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा प्लस 45 विथ x एक्सिस। एंड जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, लाइक दिस वन, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस बिकम v sin थीटा प्लस 45, दिस वन, करेक्ट। सो वी गॉट द components of v. Similarly, what we will do, we will resolve u also into two component, one along x-axis, this one, and another along y-axis, this one, ठीक है। Clear class? Okay, now see here, if you will see, u को हमने resolve किया into two components, ये इसी u को हम यहाँ पर shift कर देते हैं। So suppose this one is your u, so u को resolve किया into two components, one over here and another over here. Clear class? If this is 45, ये वाली एंगल कितनी बन गई आपकी, 45, करेक्ट। सो व्हाट विल बी दिस एंगल, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो 45, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है ये इस बैंक के साथ, रिवर की इस बैंक के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। सो दिस वन एंड डॉटेड लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है। देन इफ दिस इज 45, देन ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो 45। सो ये हमें पता चल गया कि ये 45 डिग्री है। तो u की ये वाली कॉम्पोनेंट, दिस बिकम u cos 45 एंड दिस बिकम u sin 45। तो यहाँ पर लिख देते हैं u cos 45 and this one will be u sin 45, correct? Okay, so now I will write down that u bar is equals to u cos 45 I cap and minus u sin 45 j cap. So हमने इस तरीके से u bar को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट v bar. v bar is equals to v cos theta plus 45, v cos theta plus 45 I cap and v sin theta plus 45 j cap, v sin theta plus 45 j cap. So ये हमारे u and v मिल गया। What is v? v is the velocity of man with respect to river. So velocity of man with respect to river, we know that velocity of man minus velocity of river. Velocity of man with respect to river कौन है, v bar. Velocity of man and velocity of river क्या है, u bar. So therefore velocity of man कितना हो गया, it is v bar plus u bar. What is v bar? This entire value. So I'll write down v cos
थीटा प्लस 45 आई कैप प्लस वी साइन थीटा प्लस 45 जे कैप। यू बार का वैल्यू कितना है, यू कॉस 45 प्लस यू कॉस 45 आई कैप माइनस यू साइन 45 जे कैप, सो यू साइन 45 जे कैप। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन वी कॉस थीटा प्लस 45 प्लस यू कॉस 45 आई कैप। ओके, एंड नेक्स्ट वन v साइन थीटा प्लस 45 माइनस यू साइन 45 जे कैप। ठीक है, सो ये मुझे आ गया, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ मैन। सो नाउ गाइस लिसन इट केयरफुली, वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन वांट्स टू गो डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी, मैन को ए से बी डायरेक्टली जाना है, मतलब जो मैन की वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ग्राउंड के फ्रेम में उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना, मैन की कोई भी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, उसे तो डायरेक्टली ए से बी जाना है ना, तो मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर जो वाई कॉम्पोनेंट है ये 0 बन जाएगा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन देयरफॉर v साइन थीटा प्लस 45 माइनस u साइन 45 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर v साइन थीटा प्लस 45 इज इक्वल्स टू u साइन 45, करेक्ट। सो व्हाट इज u साइन 45, साइन 45 का वैल्यू वी नो दैट 1/√2, सो u/√2 दैट इज द वैल्यू ऑफ v साइन थीटा प्लस 45। क्लियर क्लास, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v साइन थीटा प्लस 45 इज इक्वल्स टू u/√2। अभी हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस 45 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v इज इक्वल्स टू u/√2 साइन थीटा प्लस 45। सो ये हमें इक्वेशन मिला। ठीक है, नाउ क्लास क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब इस v को हमें क्या रखना है, मिनिमम रखना है। इस v को मिनिमम कैसे रखा जाएगा, डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा प्लस 45 है इसकी वैल्यू क्या करेंगे, मैक्सिमम रखेंगे। तो साइन का सबसे बड़ा वैल्यू हमें पता है क्या होता है, फॉर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर v टू बी मिनिमम साइन थीटा प्लस 45 शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम, करेक्ट। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें पता है साइन थीटा प्लस 45 इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो देयरफॉर थीटा प्लस 45 मैक्सिमम वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू। सो थीटा प्लस 45 का वैल्यू कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज हाउ मच, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस 45 का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 माइनस 45, सो देयरफॉर थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमें, 45 डिग्री, सिंपल। सो यही थीटा का वैल्यू, देखो सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया कि थीटा का वैल्यू 45 है, मतलब इसे द पर्सन शुड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस वर्टिकल लाइन सो दैट ही कैन स्विम इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये तो हमें आ गया। अभी हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन। तो जब आप इस इक्वेशन में डाल दोगे थीटा का वैल्यू, सो 45 प्लस 45 बिकम 90, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू √2 विल बी √2 ओनली। सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये उसकी स्पीड होनी चाहिए। क्लियर, सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन विल मूव टू द नेक्स्ट सम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वन। So let me read the question. Question is, a man wants to cross a river 500 meter wide. The rowing speed of the man relative to the water is 3 km per hour and river flows at the speed of 2 km per hour. If man's walking speed on the shore is 5 km per hour, then in which direction he should start rowing in order to reach the directly opposite point on the other bank in the shortest time? सबसे पहले क्लास क्वेश्चन समझो कि क्या पूछा है उन्होंने। They are asking that this person, let's say this person starts moving in this direction. This is the velocity of man with respect to river, and this is the velocity of river in the right direction. River उसको खींच के राइट की तरफ लेके जाएगा. So this is the actual velocity of man with respect to ground. ये man की actual velocity है ground के respect में. So ये जो man है यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, इस पॉइंट पे पहुँचेगा ऑपोजिट बैंक पे, और वापस से उसे ए पॉइंट के जस्ट सामने आना है.
ए पॉइंट के ऑपोजिट बैंक में जस्ट सामने आना है। तो क्या करेगा वो, यहाँ पर जाके इस पॉइंट पे पहुंचा, लेट्स से दैट पॉइंट इज सी, उस पॉइंट को मैंने क्या नेमिंग कर दिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। फिर बाद में वो क्या करेगा, यहाँ से चल के आएगा बी पे। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करना है इस पूरे जर्नी का टाइम कितना है, मतलब ए से सी से लेके बी तक ये पूरे जर्नी का टाइम कितना लग गया। सी हियर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमें दिया गया 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें दिया गया 2 किलोमीटर पर आवर, और वो द पर्सन जब वो सी पे पहुंचा, जब वो सी से बी तक वॉक कर रहा है तो उसकी वॉकिंग स्पीड जो है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द टाइम टेकन बाय द पर्सन, शॉर्टेस्ट टाइम हमें क्या फाइंड आउट करना है। अच्छा, शॉर्टेस्ट टाइम, इस पर्सन को ए से सी तक और सी से बी तक आने में जो भी टाइम लगेगा वो टाइम शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो उस शॉर्टेस्ट टाइम को पाने के लिए, इस पर्सन को कितनी एंगल पे स्विम करना चालू करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस एंगल टीटा, ये टीटा हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हमें शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए क्लास, शॉर्टेस्ट टाइम याद रखो, हमें शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, उसको ये जर्नी शॉर्टेस्ट टाइम में ख़त्म करनी है, उसे ये जर्नी शॉर्टेस्ट टाइम में ख़त्म करनी है। अगर उसे ये जर्नी शॉर्टेस्ट टाइम में ख़त्म करनी है तो उसे कितनी एंगल पे स्विम करना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा, वो हमें पता करना है। सो टीटा इज द क्वेश्चन मार्क टू मी, टीटा इज द क्वेश्चन मार्क टू अस। ओके, सो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर देंगे। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माई ओरिजिन। सो ये वाली जो लाइन है आपकी ये एक्स एक्सिस बन गई और ये वाली जो लाइन है आपकी वाई एक्सिस बन गई, दिस एंटायर लाइन, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं डबल मार्कर से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम खराब हो जाएगा। ठीक है, सो विल कीप हियर ओनली, फाइन। तो अभी क्लास हम लोग क्या करने वाले सी, ये जो वी बार है वी विल रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, वन विल बी हॉरिजॉन्टल, अनदर वन विल बी वर्टिकल लाइक दिस वन। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या बन गया, वी कॉस थीटा। मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दिस कंपोनेंट बिकम वी कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट बिकम वी साइन थीटा। तो जो वी बार होगा आपका, वी बार इज इक्वल्स टू, आई विल राइट डाउन, इट इज माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। सो दिस इज योर वी बार, और जो u बार है विच इज u i कैप in the right direction. So we know that velocity of man with respect to river is equals to velocity of man minus velocity of river. So therefore velocity of man is equals to velocity of man with respect to river plus velocity of river. What is velocity of man with respect to river? It is v bar. What is the velocity of river? It is u bar. ठीक है, putting the value of v bar and u bar in this equation. v bar का वैल्यू कितना है, माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। यू बार का वैल्यू कितना है, यू आई कैप, सो यू आई कैप, मेकिंग अ ग्रुप ऑफ आई कैप माइनस वी साइन थीटा प्लस यू, और आई कैप मैंने कॉमन ले लिया प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। सो हमें ये इक्वेशन मिल रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये किसकी वेलोसिटी है, मैन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, so this you are getting velocity of man with respect to ground. Now class listen it carefully. As we comes to know that velocity of man with respect to ground is in this direction. तो उसे रिवर को क्रॉस कराने में कौन सी वेलोसिटी मदद करेगी, इस रिवर को क्रॉस कराने में उसे v cos थीटा ये वाली वेलोसिटी उसकी मदद करेगी, मतलब द वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मतलब ये वाली कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो रिवर को क्रॉस करवाए। और ये वाली कंपोनेंट का काम क्या होगा, ये वाली कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि इसको आगे खिसकाए, मतलब ड्रिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लग गया, रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लग गया, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू क्रॉस द रिवर। ओके, सो देयरफॉर लेट्स से मैं उस टाइम को बोल देता हूँ t1, t1 इज द टाइम टेकन बाय पर्सन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। रिवर को क्रॉस कराने में कौन सी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वी कॉस थीटा। ये वाली कंपोनेंट का काम होगा रिवर को क्रॉस कराने में, और ये वाली कंपोनेंट का काम होगा इसको ड्रिफ्ट कराने के लिए। ठीक है, बिकॉज इट इज इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस कंपोनेंट इज इन वाई डायरेक्शन, है ना। सो यहाँ पर क्लास वी नो दैट वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या लेंगे, वी कॉस थीटा लेंगे। सो वी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 500 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, टाइम t1 है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन t1 इज इक्वल्स टू 500 अपॉन v का वैल्यू कितना है,
द वैल्यू ऑफ v इज 3 किलोमीटर पर आवर. सो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, दैट इज 3 cos थीटा. सो ये वैल्यू आ गई 500/3 cos थीटा. दिस इज T1. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, लिसन क्लास केयरफुली. T1 का वैल्यू आ रहा है 500/3 cos थीटा. नाउ वी विल फाइंड आउट कि इतने टाइम में तो रिवर क्रॉस हुआ, राइट? इतने टाइम में रिवर मतलब T1 इज द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू क्रॉस द रिवर, मतलब T1 टाइम में दिस पर्सन विल रीच फ्रॉम A to C, दिस पर्सन विल रीच फ्रॉम A to C. तो इतने ही टाइम में पर्सन का ड्रिफ्ट भी तो हुआ ना, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि कितना ड्रिफ्ट हुआ होगा. लेट्स से दैट दिस ड्रिफ्ट टेकन बाय द पर्सन इज x. इस ड्रिफ्ट को हमने कितना ले लिया, x ले लिया. तो ये ड्रिफ्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, इस पर्सन की x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी. इस पर्सन की द वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ना, उसकी x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी उसको ड्रिफ्ट कराने के लिए. तो माइनस, वी नो द फॉर्मूला, राइट, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे, माइनस v साइन थीटा प्लस u. डिस्प्लेसमेंट कितना है x और टाइम कितना है T1. सो देयरफॉर मैं x की बात करूंगा, x कितना हो गया, u माइनस v साइन थीटा, u माइनस v साइन थीटा इंटू T1, है ना. u का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, इट्स 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, इट्स 3 साइन थीटा इंटू T1. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x. ओके, सो T1 की अगर वैल्यू पुट कर लोगे आप, सो x कम्स आउट टू बी 2 माइनस 3 साइन थीटा. T1 का वैल्यू कितना है, 500/3 cos थीटा. सो 500/3 cos थीटा. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. क्लियर? नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली. अभी उसे पता है वो C पे पहुंचा है, उसे C से कहाँ तक आना है, अभी B पे आना है. C से कहाँ पर आना है, B पे आना है. C, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कितनी मारनी है, x मारनी है. लेकिन C से B तक आने में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि शोर पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर. सो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट दिस टाइम T2 इज द टाइम. T2 इज द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रीच फ्रॉम C to B. I'll write down. T2 क्या है, दिस इज द टाइम टेकन बाय द पर्सन, टाइम टेकन बाय पर्सन to reach from C to B. C से B तक का पहुंचने का टाइम है, ठीक है. नाउ वी नो दैट T2 विल बी व्हाट, x अपॉन V1, है ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2 माइनस 3 साइन थीटा 500/3 cos थीटा. और V1 का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ V1 इज 5, ठीक है. The value of V1 is 5 kilometer. This V1 is in 5 kilometer. Class, listen it carefully. ये जो distance था ये 500 मीटर था, है ना. ये जो distance था ये 500 मीटर था, और ये जो 3 है ये किलोमीटर में है. ओके, 3 इज इन द किलोमीटर पर आवर. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये जो डिस्टेंस है 500 मीटर, द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.5 किलोमीटर. तो मैं यहाँ पर सब जगह हम क्या करेंगे, इसको 0.5 किलोमीटर लिख देंगे, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो. ओके, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा, आंसर गलत आएगा. 0.5 किलोमीटर, तो जहाँ पर भी 500 था मैं उधर 0.5 कर रहा हूँ. सो इट कम्स आउट टू बी इन किलोमीटर. तो अभी यहाँ पर सारी कन्वर्जन हमारी किलोमीटर्स में, ठीक है. फाइन, V1 का वैल्यू कितना था हमारा, 5 था. ओके, तो नाउ 5, दिस 5 एंड दिस गेट कैंसल, सो इट कम्स आउट टू बी 0.1. 0.1. सो देयरफॉर T2 कितना मिल गया हमें, 2 माइनस 3 साइन थीटा अपॉन 0.1. 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो 10 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30 cos थीटा. सो दिस इज द टाइम टेकन T2. क्लियर? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल टाइम टेकन बाय द जर्नी. ओके, टोटल टाइम कितना हुआ, इस पूरी जर्नी ने टोटल टाइम कितना ले लिया वो हमें पता करना है, ठीक है. सो लेट मी रब दिस पार्ट. Okay, so total time taken by the journey T is equals to T1 plus T2. What is the value of T1? 0.5/3 cos theta. So 0.5/3 cos theta. Okay, that is the value of T1. And T2 का value plus 2/30 cos theta minus 3 sin theta upon 30 cos theta.
sin theta upon 30 cos theta. So this is the value what we are getting. Now class 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना, 1/2 into 3 cos theta, this one, and this one 1 za 15 za, so plus 1 upon 15 cos theta minus 3 1 za 3 10 za 1 upon 10 sin theta upon cos theta क्या होता है, tan theta होता है. So 3 2 za we know that it is 6 cos theta plus 1 upon 15 cos theta minus 1 upon 10 tan theta. टेकिंग LCM 2 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया. 5 1 जा 5, 5 plus 2 becomes 7 एंड डिनोमिनेटर में 6 5 जा 30, है ना, 30 cos theta minus 1 upon 10 tan theta. So that is the value of total time, है ना. लेकिन आपको कंडीशन दिया हुआ है दैट टाइम शुड बी मिनिमम. टाइम मिनिमम कभी होगा? टाइम मिनिमम के लिए हम लोग क्या कंडीशन लेंगे? वी नो दैट फॉर मिनिमा, लेट मी रब दिस पार्ट, या सो फॉर minimum time you can say, for minimum time derivative of time with respect to theta should be 0. हमें ये पता है, for minimum time derivative of time with respect to theta should be 0. So therefore I will write down dt upon d theta is equals to derivative of 7/30, 1 upon cos theta we know that it is sec theta, minus 1/10 tan theta. ठीक है, so 7/30 बाहर आ गया. डेरिवेटिव ऑफ sec theta we know that sec theta tan theta minus 1 upon 10 डेरिवेटिव ऑफ tan theta we know that sec square theta, करेक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में 0. sec square theta upon 10 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, so sec square theta upon 10 is equals to 7/30 sec theta tan theta. This 0 get cancelled, sec theta and this part get cancelled, है ना. तो यहाँ पर एक sec theta अभी भी बचा है, so sec theta we know that it is 1 upon cos theta is equals to 7/3 tan theta क्या हो गया, sin theta upon cos theta. तो cos theta चला गया, तो sin theta का वैल्यू कितना मिला, sin theta का वैल्यू कम्स आउट टू बी 3/7, करेक्ट. सो देयरफॉर थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, sin इनवर्स ऑफ 3/7. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. इस डायरेक्शन पे उसको स्विम करना चालू करना पड़ेगा, ठीक है. सो वेरी इंटरेस्टिंग सम, प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट सम. ओके क्लास, इट्स टाइम टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज two towers AB and CD. So there are the two towers AB and CD are situated at distance d apart. As shown in the figure, AB is 20 meter high and CD is 30 meter high. From the ground, an object of mass m is thrown from the top of AB. This is an object of mass m is thrown from the top of AB horizontally with a velocity of 10 meter per second. टूवर्ड्स CD, इसको CD की तरफ फेंका गया है, ओके. साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m, इसका मास कितना है 2m, इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ CD एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स AB एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके, विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एज दैट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. मतलब इसको भी 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, इसको भी 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है. The two objects move in the same vertical plane, collide in mid-air and stick to each other. Calculate the distance d between the towers. And second question, find the position where the object hits the ground. Okay. So let's start solving this question. I hope you got the question, है ना. तो मुझे ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है. चलो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, that this object will move in this direction like this. And this object will also move in this direction like this. And for example, they hit, both the object will hit over here. यहाँ पर एक दूसरे को hit करते हैं, let's say. Okay, so if you will see, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो the displacement, let's say the displacement, vertical displacement I am talking about. Let's say the vertical displacement traveled by the first object is y. Vertical displacement traveled by the first object is y. तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ
वी नो दैट दिस इज 20 मीटर, तो यहाँ पर ये वाली जो साइज़ है ये कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगा, लाइक दिस टिल एंड, लाइक दिस, है ना। तो ये 20 है, 30 में से 20 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो ये जो मास 2m वाला ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 प्लस y, करेक्ट। तो यहाँ तक जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ, दैट दिस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज 10 प्लस y, करेक्ट। दिस इज 10 ना, इफ दिस इज 20, दिस इज 30, देन दिस विल बी 10, 10 में y ऐड कर दो बिकॉज दिस वन इज y, राइट। सो 10 प्लस y इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द सेकेंड ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हमने अज्यूम कर लिया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का y और दूसरा ऑब्जेक्ट का 10 प्लस y, गुड। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले लेट्स रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट। इस वेलोसिटी को हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, वन विल बी हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वन विल बी वर्टिकल, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, v cos थीटा हो गया, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो गया, v sin थीटा हो गया, ओके फाइन। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन की स्टडी करते हैं, ओके चलो वर्टिकल मोशन की पहले स्टडी करते हैं। फॉर वर्टिकल मोशन तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट हुज मास इज n, उसकी बात करते हैं। लेट्स से इसको ऑब्जेक्ट 1 बोल देते हैं और इसको ऑब्जेक्ट 2 बोल देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट 1 की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट 1 की फॉर वर्टिकल मोशन व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी ऑब्जेक्ट 1 की, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 1 की 0 थी, बिकॉज ऑब्जेक्ट 1 को हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो किया था, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो कोई थी ही नहीं। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें पता है ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कहाँ पर हो रहा है, नीचे की तरफ, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज g, है ना। यही g ऑब्जेक्ट को पकड़ के नीचे लेके आएगा, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन ay का वैल्यू कितना हो गया, इट इज माइनस g, माइनस क्यू बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, है ना। तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, sy, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस y because displacement is also in the downward direction. So we will use the second kinematical equation, sy is equals to uyt plus half ayt square. So sy का वैल्यू कितना है, माइनस y, uy का वैल्यू 0, हाफ ay का वैल्यू कितना है, माइनस g, और यू कैन से माइनस 10, सो माइनस 10 t square. t is the time taken by an object to reach here at point, let's say this point is e तक पहुंचने के लिए। so therefore 2 1s are 5s are, तो y का वैल्यू कितना आ गया क्लास, y comes out to be 5t square, और you can write down t square is equals to y by 5 whatever, okay। so ये हमें एक वैल्यू मिला, इसको साइड में रखते हैं। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट 2 की, वर्टिकल मोशन में ही बात करेंगे फॉर ऑब्जेक्ट 2, फॉर ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 2 का कोई भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी था, यस ऑब्जेक्ट 2 का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी था, दैट इज v sin थीटा। सो आई विल राइट डाउन इट इज माइनस क्यू बिकॉज इट इज डायरेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो माइनस v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, स्पीड कितनी थी उसकी 10 मीटर, सो 10 sin थीटा का वैल्यू कितना है 60, सो माइनस 10 sin 60 का वैल्यू वी नो दैट √3/2 1s are 5s are, so it comes out to be minus 5√3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, इसका भी माइनस g होगा, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन माइनस g, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन, सो द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज 10 प्लस y, सो आई विल राइट डाउन माइनस 10 प्लस y बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड साइड है। सो वी हैव दिस डेटा, सो यूजिंग द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन sy इज इक्वल्स टू uyt plus half ayt square. Now class, time taken by both the object 1 and object 2 to reach at point E will be the same. दोनों को एक साथ रिलीज किया गया तो दोनों एक ही टाइम में E पे पहुंचेंगे, लाइक दिस, एक ही टाइम में E पे पहुंचेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर भी टी टाइम लग रहा था, तो यहाँ पर भी टी टाइम ही लगेगा। sy का वैल्यू कितना है, माइनस 10 प्लस वाई, विल पुट दैट वैल्यू माइनस 10 प्लस वाई। uy का वैल्यू कितना है,
माइनस 5√3, सो -5√3 t प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है, ए वाई या -10, so -10 t square. So this is the value we are getting. Okay, so therefore I will write down -10 plus y -5√3 t 1 ज़ा 5 ज़ा, यहाँ पर भी माइनस है तो ये हो गया -5t स्क्वायर. क्लियर. यहाँ से क्लास माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया. So this minus and this minus get cancelled. So 10 plus y is equals to 5√3 t plus 5t square. है ना. अब आप जब y का वैल्यू देखोगे तो y का वैल्यू कितना है, 5t स्क्वायर है ना. तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ y एज 5t स्क्वायर. सो 10 plus 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5√3 t plus 5t स्क्वायर. 5t स्क्वायर एंड 5t स्क्वायर गेट कैंसल्ड. सो 10 इज इक्वल्स टू 5√3 t. सो टाइम का वैल्यू कितना आ गया, 10/5√3. सो विच इज़ 1 ज़ा 2 ज़ा, तो इट कम्स आउट टू बी 2/√3 है ना. तो यहाँ पर 2/√3, लेट्स रैशनलाइज दिस. सो 2√3/3 सेकेंड, इतना टाइम लग गया फॉर द पार्टिकल, बोथ द पार्टिकल टू रीच एट पॉइंट ई. अभी हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे. वर्टिकल मोशन हमने टाइम निकालने के लिए ही निकाला था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन. तो इसको रब कर देते हैं और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पढ़ेंगे फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट 1 एज वेल एज ऑब्जेक्ट 2. ओके फाइन. अभी ध्यान से देखना हम कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को. सो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पहले बात कर लो. फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड है ना. दोनों ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से फेंका गया था. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स सी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज x1 एंड सेकंड ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज x2. जब आप x1 और x2 को ऐड करोगे तो आपको d मिल जाएगा. तो ये तरीका था निकालने का. ठीक है. नाउ लिसन इट केयरफुली. x1 की सबसे पहले बात करते हैं. x1 हमें पता करना है, टाइम हमें पता है a से e तक आने में टाइम कितना लग गया, 2√3/3. सो 2√3/3 सेकेंड्स का टाइम लग गया. We know that displacement is equals to velocity into time. What is velocity? Velocity is 10. टाइम कितना है, 2√3/3. तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the 20√3/3 मीटर. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x1. ये किसका वैल्यू है, x1 का वैल्यू. सो x1 कितना आ रहा है, x1 का वैल्यू हो गया 20√3/3 मीटर. अब बात करेंगे x2 की, है ना. सो फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट. सेकेंड ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर व्हाट इज़ द वेलोसिटी, v cos थीटा है ना. सो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, v cos थीटा. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, इट इज़ 10. cos थीटा मीन्स cos 60. वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 60 इज़ 1/2. 5 ज़ा, तो ये कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड. तो इतनी हॉरिजॉन्टल स्पीड है इसके पास. करेक्ट. ओके. सो हॉरिजॉन्टल स्पीड u विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, बट क्लास u की जो डायरेक्शन है वो इट इज़ इन द नेगेटिव x डायरेक्शन. तो u को हम लोग क्या ले लेंगे, -5 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट, बिकॉज इट इज़ इन द नेगेटिव x डायरेक्शन. तो यहाँ पर हर जगह हम माइनस लिख देंगे. ठीक है, या कन्फ्यूज़ नहीं होना है. डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो वो भी नेगेटिव साइड है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम नेगेटिव में ही लेंगे. दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू -x2. और टाइम कितना लग गया इस पार्टिकल को c से e तक आने में, 2√3/3 सेकेंड्स का टाइम लग गया. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, हमें x2 फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन -x2. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी दैट इज -5. टाइम कितना है, 2√3/3. सो माइनस एंड माइनस गेट कैंसल, 5 2 ज़ा 10. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट x2 कम्स आउट टू बी 10√3/3 मीटर. ठीक है, 10√3/3 मीटर. तो ऑब्वियसली d आ जाएगा. d का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 + x2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, 20√3/3. सो 20√3/3. द वैल्यू ऑफ x2 10√3/3. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x2 कितना हो गया, 10√3/3.
सो 20 + 10 कितना हो गया 30√3/3 1 ज़ा 10 ज़ा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है d, द डिस्टेंस बिटवीन द टावर d इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर. सिंपल. Please note down, then we'll move to the second sub question. Please note down this part. Now it's time to move to the second sub question. Second sub question में हमें क्या पूछा गया था, फाइंड आउट करो कि इन दोनों पोजीशन, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट था, ये जब ये दोनों ऑब्जेक्ट का टकराना हुआ उसके बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड में कहाँ पर गिरे. We want to find out the position of this object after striking. What will be the position of the object when it lands on the ground? जब ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे लैंड किए तो उस वक्त उनकी पोजीशन क्या होगी, ग्राउंड पे वो कहाँ पर लोकेट हो गए. तो ये चीज़ हमें पता करनी है. सो लिसन इट केयरफुली. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है कि इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है. इस ऑब्जेक्ट की क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड किए तो इनकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है. तो पहले मेरा इंटरेस्ट क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल स्पीड आफ्टर कोलिजन. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में हम यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता करनी है. ठीक है. ओके, नाउ सी हियर, लेट्स टॉक अबाउट, वी नो दैट व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम. व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन फॉर द टू ऑब्जेक्ट. So initial momentum before the collision for the first object, let's say it is m, और इसकी velocity कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड. so m into 10 plus what is the momentum of for the second object before collision. second object का मास कितना था 2m था, और उसकी horizontal velocity कितनी थी v cos theta. v cos theta मतलब 10 cos theta, v की जगह हम 10 पुट करेंगे तो ये हो गया 10 cos theta. करेक्ट. लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, इट इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसके लिए मैं माइनस साइन लूंगा यहाँ पर. ठीक है. इज इक्वल्स टू, अब दोनों ऑब्जेक्ट हिट हो गए यहाँ पर पॉइंट ए पे, दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर गए, एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए, चिपक गए. ओके. तो यहाँ पर इन दोनों का, सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास क्या है m है, और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट की स्ट्राइकिंग हुई, टकराने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, लेट्स से v. चलो मैंने मान लिया v इज इन दिस डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन, है ना. टकराने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट, चलो ऐसा मान के चलते हैं कि ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए और फिर इस डायरेक्शन में मूव कर गए. तो मतलब देखो ये इसकी हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन होगी वो v है. लेट्स से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है उसकी v है. तो लेट्स से m इंटू वी प्लस 2m इंटू वी, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जाएगा क्योंकि दोनों अभी स्टिक हो गए एक दूसरे के साथ. और मैंने ऐसा अज्यूम किया कि दोनों की जो डायरेक्शन है स्टिक होने के बाद वो कौन सी डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में गया है. विथ वेलोसिटी, विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v. तो mv प्लस 2mv कितना हो गया आपका 3mv हो गया. यहाँ पर जब आओगे दिस विल बी 10m प्लस माइनस बिकम माइनस 2 इंटू 10 बिकम्स 20m कॉस थीटा. थीटा का वैल्यू कितना था 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1 ज़ा 10 ज़ा. तो आप जब देखोगे लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 3mv. तो m 0 नहीं हो सकता क्लास, ऑब्वियसली v 0 रहा होगा, है ना. इसके लिए 0 हुआ, तो v का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जब स्ट्राइक किए, स्टिक किए एक साथ, बोल सकते हो, जब दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए तो इनके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी. इसका मतलब ये स्टिक होने के बाद, ये स्टिक होने के बाद डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आ गया. सी, इसके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं. मतलब ये ऐसा आया, स्टिक हुआ और फिर बाद में ऐसे गिर गया. सी, ये ऐसा आया, स्टिक हुआ, बाद में ऐसे गिर गया. क्लियर. तो यहाँ पर जब आप देखोगे बॉटम पे उसकी पोजीशन क्या है, बॉटम पे उसकी पोजीशन टावर ए से x1 वैल्यू है ना. देखो कोलाइड कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था x1 पे, टावर ए से x1 की डिस्टेंस पे. तो सेम x1 का वैल्यू कितना है 20√3/3. तो टावर ए से
उनकी पोजीशन क्या होगी, टावर ए से उनकी पोजीशन होगी 20√3/3 मीटर. सो दिस इज योर आंसर. Okay class, let's solve the next question. Again very interesting question, rocket missile problem. So the question is, a rocket moves horizontally with a constant velocity v at a height h. A guided missile is fired vertically with the same speed when the rocket passes above it. Assuming that the missile always aims at the rocket with the constant speed u, find the final separation between the both. मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ. क्या है क्वेश्चन. यहाँ पर सबसे पहले ये जो मिसाइल है, दिस इज़ अ रॉकेट हुज वेलोसिटी इज़ v. तो जिस वक्त ये वाली रॉकेट इस मिसाइल के ऊपर से पास हुई है, उसी वक्त इस मिसाइल को रिलीज़ किया गया विद स्पीड v, सेम स्पीड के साथ. अभी जैसे जैसे रॉकेट आगे जाएगा, ये मिसाइल इसको हमेशा फॉलो करेगा लाइक दिस. जब यहाँ पर है तो ये जो रॉकेट है वो यहाँ पर है और मिसाइल ये होगा. जब रॉकेट यहाँ पर आएगा तो मिसाइल यहाँ पर आ जाएगा. और जब रॉकेट देखो अभी आपका यहाँ पर चला गया तो मिसाइल यहाँ पर आ गया, है ना. तो ये जो मूवमेंट हो रही है कुछ ऐसे हो रही है. सी दिस मूवमेंट इज़ इन दिस डायरेक्शन. ये जो मूवमेंट हो रही है वो ऐसे हो रही है. तो आपको फाइंड आउट करना है, जब मिसाइल इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया तो उस वक्त मिसाइल और रॉकेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस पता लगाना है. यही डिस्टेंस आपको पता लगाना है, ठीक है. दिस डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. नाउ सी हियर व्हाट वी आर डूइंग. एट एनी इंस्टेंट, सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी गुजर चुका है, उस वक्त ये मिसाइल रॉकेट को इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. सी दिस वन, है ना, ये वाला डायरेक्शन. यहाँ पर जो रॉकेट का वेलोसिटी था, दिस वेलोसिटी इज v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेट्स से ये वाली एंगल थीटा है. लेट्स से दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b. करेक्ट. सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट्स से r इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, और यू कैन से ऑब्जेक्ट में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मिसाइल. चलो इसको रब करके मिसाइल लिख देते हैं. डिस्टेंस बिटवीन मिसाइल एंड रॉकेट एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t. मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करने जाऊँ इस पॉइंट पे, तो ए बी इज़ नथिंग बट योर r. ए बी आपका क्या हो गया, r हो गया, दिस डिस्टेंस. और इस पॉइंट पे अगर बात करोगे तो यहाँ पर देखो ये c है, जो इस मिसाइल रॉकेट के साथ ये d है लाइक दिस. तो ये आपका डिस्टेंस हो गया r. यहाँ पर ये डिस्टेंस r है. तो r देखोगे आप, जैसे जैसे मिसाइल रॉकेट को अप्रोच कर रहा है तो r की वैल्यू कम होती जा रही है, r की वैल्यू बदलती जा रही है. क्लियर. नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली. आई विल से दैट ए बी लाइन इज माई एक्स एक्सिस. ये ए बी जो लाइन है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है. तो हम क्या करेंगे, v को रिजॉल्व करेंगे in the direction of x-axis. Let me resolve with black marker. So v को रिजॉल्व करेंगे. लेट्स से ये आपका हो गया this one and this one. ये हो गया v cos theta. I hope you can see. And this one become v sin theta. v sin theta मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. एंड रॉकेट की जो वेलोसिटी थी, वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज़ v, है ना. तो यहाँ पर जब मैं आपको बोलूँगा टेल मी व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमें पता है कैसे निकालते हैं. वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए, इट्स v. एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी. वेलोसिटी ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी. ए बी के डायरेक्शन में b की वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा v cos थीटा, दिस वन. Which is we know that it is nothing but what, velocity of approach is nothing but what, rate of change of displacement with respect to time. Correct. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट r की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. देखो यहाँ पर r की वैल्यू a b थी, फिर r की वैल्यू c d हो गई, आगे जाके r की वैल्यू और कम हो जाएगी. r की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है. रिमेंबर वन थिंग. ओके. नाउ सी हियर व्हाट आई विल राइट डाउन, v माइनस v cos थीटा इस dt को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, इज इक्वल्स टू माइनस dr. सो देयरफॉर माइनस dr इज इक्वल्स टू v माइनस v cos थीटा इंटू dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
दोनों जगह इंटीग्रेट कर दिया, करेक्ट, गुड। यहाँ पर हमें आर का, आर क्या था, आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन मिसाइल एंड द रॉकेट एट एनी टाइम टी। जब आप यहाँ पर इनिशियल पोजीशन की बात करेंगे, दोनों की इनिशियल पोजीशन, उस वक्त मिसाइल और रॉकेट के बीच में कितना डिस्टेंस था, एच डिस्टेंस था, तो इसकी इनिशियल लिमिट एच हो जाएगी। और यहाँ पर जब फाइनल पोजीशन में देखो रॉकेट और मिसाइल के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स से, तो फाइनल पोजीशन एक्स हो गई, फाइनल डिस्टेंस एक्स हो गई, है ना। सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन, इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस आर लिमिट्स पुट करेंगे एच से एक्स तक इज इक्वल्स टू वी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस थीटा डी टी, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर देखोगे माइनस आर की जगह में क्या लिखूंगा, एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस थीटा डी टी। तो इसको हमने अभी एज इट इज़ रखा है, अभी हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया इसके साथ, ठीक है। ओके, नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली व्हाट वी आर डूइंग। सबसे पहले ये, चलो इसको साइड में रख देते हैं, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने साइड में रख दिया। अभी जब आप बात करोगे, लेट्स से अभी फिलहाल हमारा पूरा फोकस होगा किस पे, रॉकेट पे। रॉकेट इस पोजीशन से, लेट्स से दिस इज पोजीशन P एंड दिस इज पोजीशन Q, है ना, दिस इज पोजीशन P एंड दिस इज पोजीशन Q। रॉकेट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, रॉकेट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं बात कर रहा हूँ P से Q तक की, P से Q तक की। रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी V से जा रहा है ना। तो आई विल राइट डाउन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द रॉकेट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ PQ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ PQ की बात करो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ PQ वी नो दैट इट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम। लेट्स से P से Q तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया, T टाइम लग गया, कैपिटल T। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया VT। चलो PQ का वैल्यू VT है, समझ में आता है। अब बात करते हैं that let's say this position of the missile is R and this position of the missile is S, correct। R से S तक ये मिसाइल कैसे जा रहा है, R से S तक जा रहा है, कितने टाइम में जाएगा, इन टाइम T, इन टाइम T। नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली। यहाँ पर जब आप देखोगे, जब मिसाइल की ये वाली पोजीशन है और ये वाली पोजीशन है, लेट्स से इनके बीच में जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मारा है वो dx है, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम लग गया वो कितना टाइम लग गया, dt टाइम लग गया। लेट्स से दिस पार्ट कितना टाइम लग गया, dt। एकदम ध्यान से समझना क्लास, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx से, और a से c तक आने में कितना टाइम लग गया, dt टाइम लग गया, ठीक है। dt इज योर टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, सी इफ दिस इज v, है ना, तो v को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट, वन विल बी horizontal component and another will be vertical component. So if see यहाँ पर AB जो लाइन है ना, ये horizontal लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। दिस AB लाइन horizontal लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस component बिकम V cos थीटा। सो ये V cos थीटा वाला component रिस्पॉन्सिबल था फॉर द horizontal displacement dx। तो therefore I will write down that therefore V cos थीटा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट dx इज इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों जगह मैंने इंटीग्रेट करवा दिया, है ना, दोनों जगह हमने क्या करा दिया, इंटीग्रेट करा दिया। तो देखो जब आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx, लेट्स से ये मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है x विच इज इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस थीटा डी टी। इसको हम एज इट इज़ रखते हैं, इसको हमने क्या किया, एज इट इज़ रखा, ठीक है। अब आपको ये समझना है ये x है क्या, ये x रॉकेट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं बात करूँ इस x की डायग्राम में, तो ये जब रॉकेट सॉरी मिसाइल, ये जो मिसाइल है जब आपका S पे पहुंचा और इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, तो ये x आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है रॉकेट का, करेक्ट, गुड। तो यहाँ पर ये PQ डिस्प्लेसमेंट को हम x1 बोल देते हैं। चलो x1 का वैल्यू कितना है, v इंटू कैपिटल T। x1 का वैल्यू कितना है, v इंटू कैपिटल T। तो जब मैं x1 को, क्लास लिसन इट केयरफुली, x1 PQ इज माई x1 को जब मैं x से माइनस करूँगा, x1 को जब मैं x से माइनस करूँगा तो मुझे कैपिटल X मिलेगा।
So therefore I will write down capital X is nothing but x1 minus x. What is the value of x1? V into t minus x का वैल्यू कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ v cos theta dt. This is the value. Now class come back over here. वापस से यहाँ पर आ जाओ. हमें पता है ये जो इक्वेशन था, दिस इज द फाइनल पोजीशन क्या था? x था ना, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी थी? x थी. तो यहाँ पर जब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, वी नो दैट v कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा dt, राइट. यहाँ पर जो लिमिट्स हो जाएगा वो 0 से t तक हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लग गया, और यू कैन से p से q तक पहुँचने में टाइम कितना लग गया? t टाइम लग गया रॉकेट का, है ना. सो इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी व्हाट? कैपिटल T माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा dt. दिस इज द वैल्यू. ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस माइनस बिकम प्लस माइनस एच. ओके, सो h माइनस एक्स हो जाएगा. सो नाउ इफ यू विल सी vt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा dt, राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, मीन्स इनका जो लेफ्ट हैंड साइड्स होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन h माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x. सो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 2x. सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया? h/2 हो गया. सो दिस इज द फाइनल सेपरेशन बिटवीन द रॉकेट एंड मिसाइल.